Good evening, all my dear students of class 8th. Today I am back again with a new lesson, that is tsunami. So you must have heard you must have been having lots of information about tsunami, but it's in this chapter we are going to learn many things. But before that, we should know the meaning of tsunami. You see, the T is silent and we pronounce it as tsunami. What is tsunami? It is a very large wave in the sea which destroys things when it reaches the land and is often caused by movements under the surface of the earth. So under the surface of the earth all the movements will happen. Okay, प्राय समुद्र में भूकंप आने से उत्पन्न होता है विशाल और विनाशकारी लहरें, उसको बोलते हैं सुनामी. Okay, so now after that, before we start the lesson, I will like to show you a video of tsunami, a very frightening video. So let's enjoy the video. You see how the earthquake is there. So earthquake, the earth plate is moved. Earth की प्लेट जो है वो अपनी जगह से मूव हो गई, और जब अर्थ प्लेट मूव हो गई है तो क्या हुआ है, सारी सी जो है वो उस प्लेट के अंदर जाने लगती है. द सी गोज बैकवर्ड. आप देख रहे हैं सी पूरी पीछे जा रही है. ये बहुत बड़ी निशानी है सुनामी की कि जब समुद्र पीछे को जाने लगे तेजी से. देखिए आप, देखिए अब ये देखिए समुद्र, देखिए बिल्कुल सब पीछे को जाने लगा है, अंदर वापस जा रहा है, क्योंकि वो जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो अपनी जगह से खिसक गई है, ऊपर हो गई है. उसकी वजह से अर्थ जो है वो अंदर से वाइब्रेंट हो गई और उसके अंदर ये सारा पानी वापस जा रहा है. और जब वो प्लेट अपनी जगह नीचे वापस आएगी, जब वो मूवमेंट वापस होगा तो ये दोबारा से आप देखिए हाउ इट कम्स, हाउ इट विल कम बैक. सी, यू कैन सी द waves, my god, how the waves are coming with full speed and with full pressure. It will destroy everything जो भी उसके रास्ते में आएगा. It will finish off and it pulls down big trees, big houses. They all are pulled away with the waves. When it goes back, it takes everything with it. So this was okay. Now we'll continue with our chapter. Okay, there are 4 main reasons for formation of tsunami. Okay, undersaid earthquake, just now I have explained you. Landslide, when there is landslide, a land moves from its place and goes to other place, or some formation is there. Then volcanic eruption, if there is a volcano, जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी फूटना. And meteoroids and asteroids, जब आसमान से कोई meteoroid या asteroid टूट के जाके नीचे गिरता है तो भी ये सुनामी आ सकती है. Now this chapter which we are going to take, it has got 3 main parts. There are stories from Andaman and Nicobar Island, story from Thailand, and animal behavior. Stories from Andaman Nicobar Island, there are 4 stories. Igneous, I इसमें लगना है, I Igneous, Sanjeev, Meghna and Alma. Okay, 4 stories are there. We will read 4 stories of Andaman and Nicobar. 1 story we will read from Thailand, that is of Tili and animal behavior. So this is the summary of the lesson. If you see, this is the summary, because sometimes we feel the lesson is very absurd, not clear. So first you should know that there will be 3 main things: stories from Andaman and Nicobar Island, stories from Thailand, and animal behavior. Okay, now introduction. This part gives us some important and inspiring incident. These occurred when tsunami hit parts of India. जब सुनामी ने इंडिया में हिट किया था, उसकी अंडमान निकोबार की कुछ स्टोरीज इसमें हैं. इंस्पायरिंग क्यों? मोटिवेटिंग, हाउ पीपल फॉट, कैसे लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई करी, कैसे लोग खड़े हुए. जैसे कि आजकल हम लोग कोरोना, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना. ठीक है, सो देयर आर मेनी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Okay, first story we will read about the unfortunate Ignatius. The first story is about Ignatius. His wife woke him up at 6 a.m. sensing an earthquake. उसकी वाइफ को लगा एक earthquake है. Ignatius put the television on the ground to save it from the quake. Movement, quake माने movement, शेक से. उसने कहा शेकिंग होगी अर्थ की, तो उस शेक से बचाने के लिए उसने उसको टेलीविज़न को नीचे रख दिया. एंड व्हेन द ट्रिमर स्टॉप, ट्रिमर्स का एग्जांपल आपको बहुत ज़रूरी है. ट्रिमर्स माने क्या? कंपन, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का कांपना और अर्थ का हिलना. ठीक है, दे सॉ द सी राइजिंग, तब उन्होंने देखा जब
कि सी जो है वो एकदम ऊपर को जा रही है। दे कॉस्ट कन्फ्यूजन, दे रैन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इससे कन्फ्यूजन हो गया, भगदड़ मच गई और वो अलग अलग डायरेक्शन में भागे। हिज वाइफ स्वेप्ट अवे, स्वीप का पास्ट टेंस होता है स्वेप्ट। स्वीप माने एकदम लहरों के संग चली जाना, पुछ जाना बिल्कुल से। हर 2 चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद द फादर एंड ब्रदर वर ऑल्सो लॉस्ट, उनके दोनों बच्चे भी अपने फादर मदर के संग खो गए। दस ए जिंजर लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रेन, हिज फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इन द सुनामी। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इग्निशियस। तो ये फर्स्ट स्टोरी थी जो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स की पढ़ी। सेकंड स्टोरी क्या है? ब्रेव संजीव, संजीव की स्टोरी है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड डॉटर। उसने अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को बचा लिया। देन ही हर्स द क्राइज फॉर हेल्प, उसको कुछ मदद की चीखें सुनाई दी। दीज वर फ्रॉम जॉन्स वाइफ, जॉन उसकी कुक था, उसके घर में हाउस कुक था, उसके घर में रसोइया था, उसकी वाइफ थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव हर, उसको दोबारा वो जंप करा पानी में उसको बचाने के लिए। दे बोथ स्वेप्ट अवे एंड ड्राउन्ड, दोनों ही बह गए और डूब गए। तो स्वेप्ट अवे के लिए आप दूसरा वर्ड लिख लीजिए वॉश्ड अवे। क्या होगा? वॉश्ड अवे। अगर आपको स्वेप्ट वर्ड याद नहीं होता, यू कैन हैव अ सिनोनिम फॉर इट, दैट इज। और क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिसऑर्डर। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया वहाँ पे, क्योस हो गया। एक वर्ड आप पाएंगे क्योस, क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी कि पूरा कन्फ्यूजन। ओके, देन अब हम थर्ड स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं किसकी? मेघना की। मेघना वॉज 13 years old. शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, 77 अदर लोग के संग बह गए। शी हेल्ड ऑन अ वुडन डोर एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 days, और वो 2 दिन तक उस पर फ्लोट करती रही, तैरती रही एक वुडन लकड़ी के दरवाजे पर। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय वेव एंड सेव्ड, उसको एक लहर से वो किनारे पे आ गई और उसकी जान बची। तो ये तीसरी कहानी थी मेघना की। चौथी अल्मा, ट्रेजिडी ऑफ अल्मा क्या थी? अल्मा वॉज 10 years old. द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वोकन अप. He saw the sea water residing after the tremors. जब सी में ट्रिमर्स आए, कमर हुई, उसके बाद उसने देखा कि सी वापस जा रही है। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, वाटर वॉज गोइंग बैक, उसको बोलते हैं रिसीडिंग। तो रिसीडिंग के लिए आप दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, रिसीड माने का मूव बैक। रिसीड के लिए दूसरा वर्ड क्या है? मूव बैक। ओके, ही न्यू इट वुड कम बैक, वो समझ गए कि वो ग्रेट ऑफ फोर्स, इट विल कम बैक। ही वोक एवरीवन ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस। एज दे रैन हिज फादर फेल डाउन, अल्मा's फादर रश टू हेल्प हिम, उसके फादर अल्मा के दादाजी गिर गए और उसके फादर उनको बचाने के लिए भागे। देन केम अ बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे, और फिर एक बहुत बड़ी लहर आई तो उसके पिताजी और उनके पिताजी दोनों बह गए। द मदर एंड आंट व वॉश्ड अवे टू, वो लोग भी, उसकी माँ और उसकी आंट्स भी सब बह गई। दे वर स्वेप्ट अवे एंड विद द ट्री दे वर होल्डिंग टू, एक पेड़ पकड़ के अपने आप को बचा रखा था पर वो पेड़ ही उखड़ गया और वो सब उसमें बह गए। सो यू सी कैसे लोग कितने सारे उसमें मर गए। और अल्मा कैसे बची? अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का बड़ा सा पीस जिसको हम लॉग कहते हैं। तो अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई। फिर उसकी आँख खुली जब वो कामोटा हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल का जगह है कामोटा। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया। तो ये हमने स्टोरीज पढ़ी अंडमान निकोबार आइलैंड की। अब हम आते हैं थाईलैंड में। दिस इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड में एक ही बच्चे की कहानी है, टिली की। टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो क्यों आए थे थाईलैंड से इंग्लैंड? क्रिसमस बनाने के लिए। इट वॉज 26 December. शी वॉज स्टैंडिंग विथ अ फैमिली ऑन द बीच, वो बीच के किनारे, समुद्र के किनारे खड़ी थी। टिली एंड अ मदर पेनी स्मिथ बोथ सॉ द सी वाटर स्वेलिंग, उन्होंने देखा कि पानी फूल रहा है, ऊपर को जा रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और धीमे धीमे बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था। दे सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, उन्होंने देखा कि सी एकदम से ऊपर को उठ रही है और उसमें झाग सी आ रही है। टिली सॉ द सी मेकिंग वर्लपूल, उसने देखा कि सी वर्लपूल बना रही है। वर्लपूल माने क्या होता है? ऐसे गोल 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 पानी में ऐसे अंदर वापस जाना। तो ये एक निशानी है, ये सब निशानियाँ हैं उसकी सुनामी की। बैड साइन, यानी कि बुरे उसको टिली को बहुत से बुरे साइन दिखाई दिए। क्या? टिली मदर वॉज नॉट अलार्म्ड, उसकी माँ ने कोई चेतावनी नहीं मिली, उसकी माँ को कोई अलार्म नहीं मिला, इससे कोई चेतावनी नहीं मिली। Tilly remembered the video that her geography teacher had shown in the class 2 weeks before. Luckily उसकी क्लास में उसकी टीचर ने 2 दिन पहले ही उसको पूरा
ये वीडियो दिखाया था इसका सुनामी का, तो वो समझ गई कि ये सुनामी है। इट अकर्ड टू हर दैट देयर वर श्योर साइंस ऑफ सुनामी। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाने लगी, एंड आस्क्ड हर द फैमिली टू गो ऑफ द बीच, और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगी बीच से दूर चलो, बीच से हटो। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरेबल, शी हाउएवर फेल्ट दैट हर डॉटर मस्ट बी राइट। उसकी माँ को समझ में नहीं आया कि क्या है, इतना भयंकर क्या होने वाला है, पर उन्होंने अपनी बेटी को माना एंड वेंट अवे फ्रॉम द बीच। और इस तरह से टिली ने, क्योंकि उसके बारे में शी न्यू लॉट ऑफ थिंग अबाउट इट, इसलिए वो वहाँ से चली गई। टिली द सेवियर, टिली जो थी उसने सेव किया। सेवियर कौन होता है? वन हु सेव्स, जो दूसरे को सेव करता है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। मैनी अदर्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच। टिली के पेरेंट्स ने टिली की बात मान के उन्होंने स्विमिंग पूल को वहाँ छोड़ के होटल, वहाँ बीच को, और वो अपने स्विमिंग पूल होटल में आ गए। होटल में आ गए वो लोग। मैनी अदर, काफ़ी लोग और भी उनको देख के आ गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम, और इसके बाद ऐसा हुआ जैसे पूरा समुद्र ही उनके पीछे पीछे आ गया। द फैमिली टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज माने शेल्टर, फैमिली ने शेल्टर लिया। किसमें? इन द थर्ड फ्लोर ऑफ, वो होटल के तीसरे माले पे थे। द बिल्डिंग विथस्टूड द फोर्स ऑफ सुनामी, उस बिल्डिंग ने पूरा सहन किया सुनामी को। इफ़ दे हैव स्टेड ऑन द बीच देन दे वुड हैव डाइड, अगर वो कहीं बीच पे रह जाते तो वो सब मर जाते। और एक बात और थी कि वो होटल की बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, जो बच गए वो, नहीं तो कई कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उसमें चली गई। सो दिस वॉज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। नाउ द लास्ट, द एनिमल बिहेवियर। एनिमल सेंस, एनिमल्स हैव गॉट अ 6 सेंस। आपको पता है हम लोग के पास, सबके पास 5 सेंस होते हैं, पर एनिमल के पास 6 सेंस होता है। सुनामी किल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। उसमें पूरे में जो सर्वे बाद में आया, जो रिसर्च से पता लगा कि केवल फ्यू एनिमल्स ही मरे थे। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड। अब आप देखिए, याला नेशनल पार्क श्रीलंका में केवल 2 एनिमल्स ही डेथ हुई थी। In the same park, people had observed 3 elephants run away from the beach an hour the tsunami hit. 1 घंटे पहले सुनामी के आने से तो लोगों ने वहाँ ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स थे वहाँ पे, वो भाग के बीच से ऊपर चले गए। A man on the coast near Gale in Sri-Lanka had 2 dogs. एक आदमी के पास 2 कुत्ते थे, वो कोस्ट के किनारे ही रहता था गैले में। ऑन द फेटल डे, उस दिन, खराब दिन, उस जिसने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा, उस दिन, डे ऑफ सुनामी, दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच। उन कुत्तों ने घूमने जाने से मना कर दिया। सो द मास्टर टू स्टे बैक, तो मास्टर भी नहीं गया घूमने। दस द डॉग्स हैड सेव्ड हिज लाइफ टू, तो डॉग्स ने इस तरह से अपनी मास्टर की जान को बचाया। तो आपको ये मालूम है कि एनिमल्स के पास 6 सेंस होते हैं, और एनिमल्स ये उनको पता लग जाता है कि कुछ प्राकृतिक बहुत बड़ा कुछ घटना होने वाली है, और इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग गए। तो ये आपने पूरे लेसन पढ़ा, और आपको पता है कि श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में कम से कम बहुत सारे एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड हैं। और उसी से वहाँ पे पाटानंगला बीच से 60 विजिटर्स जो थे वो बिल्कुल स्वेप्ट अवे हो गए थे, जो मर गए थे। लेकिन सिर्फ 2 वाटर बफलोज, केवल 2 पानी की भैंस जो थी वो मरी वहाँ पे। बाकी कोई भी जानवर की डेड बॉडी या कुछ भी नहीं पाया गया। So this was all about the lesson. I hope you have understood. Or there are many other words also which you can search. And if you have any doubt, you please ask me on my WhatsApp number. And with that, okay, like this video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.